Hello students, welcome to my channel. We were on the chapter 6 life processes and now it's time to discuss about the topic excretion. So what is excretion? Excretion is a biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes or nitrogenous waste from the body. एक्सक्रीशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी में लिविंग बॉडी में होने वाला वो प्रोसेस है जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक मतलब मैंने पहले ही बताया आपको द केमिकल रिएक्शंस विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी तो उनसे जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो वेस्ट मटेरियल हो गए और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन है. So in a unicellular excretion occur through diffusion only from high concentration to low concentration the waste material flows. But in multicellular, as the body is very complex, it has specialized organ. So various specialized organ combines to form a system, organ system, to perform the function of excretion. So let's have knowledge about the excretion in humans. So in humans, excretions takes place through the organ system called excretory system. In excretory system, the organs are pair of kidney. Here, the bean-shaped structure as shown here is kidney, and these are the blood vessels. One are carrying oxygenated, and another one the deoxygenated blood carry. And this tube-like structure which is coming out of the kidney, it is called ureter. And this ureter comes inside joining the bag-like structure that is called urinary bladder. A urinary bladder has a pore that is called urethra. So these are the structural organs present in the excretory system of the humans. So one, as you are seeing the pair of kidney, the kidney shape is like bean shaped, whose length is 10 centimeter and the breadth is 5 to 6 centimeter, and its thickness is up to 4 centimeter, and it is located in the abdominal cavity. पेट के जस्ट नीचे पेट के नीचे वाले पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी जिसको कहते हैं वहाँ ये लोकेटेड होता है. एंड इट इज़ अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल. डॉर्सल बॉडी वॉल यानी पीछे के बॉडी वॉल से ये अटैच्ड होता है दिस स्ट्रक्चर through which excretions takes place. So excretion, this kidney help in purifying the blood. It purify the blood, kidneys purify the blood. और यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि here this one is the our left kidney, this one is the right one. So right kidney जो है वो थोड़ा सा नीचे होती है as comparison to the left kidney के position से. Why? Because here the liver is present, and that's why it is just below the liver at the lower position as comparison to the left kidney. Okay, now we will see the function of these structures. Okay, so first this one is the renal artery which are bringing oxygenated blood with waste material. Okay, and this black shaded pipe as shown it as renal vein. So renal vein is taking the deoxygenated blood from the kidney. As kidney is also working, it also excrete CO2. So CO2 is taken away by the deoxygenated blood from the kidney, and oxygenated blood with waste material are coming inside the kidney. After the purification of the blood by the kidney, the purified blood as in the form of deoxygenated blood, it goes into the lungs through heart, and the urine which forms by the kidney that comes through the ureter, that is the passage which bringing urine from the kidney to the urinary bladder. Urinary bladder collect the kidney and store it temporarily, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है. एंड व्हेन इट गेट फिल्ड ऑफ, जब ये भर जाता है तो इट वी हैव द सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन दैट इज टोटली इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते. तो जब ये यूरिन से ये पूरा भर जाता है तो यूरिनेशन का सेंसेशन आता है, और देन द पर्सन रिमूव द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा. So this is the function of excretory system. Now we will study about the functional unit of the kidney. As kidney
is purifying the blood. तो something is there inside the kidney which purifying the blood, जो purify कर रहा है blood को. So something is there inside the kidney. That unit is called nephron. We will see. So kidney function is to purify the blood or taking out the nitrogenous waste and filter the blood. And another one is the osmoregulation. Osmoregulation means maintenance of salt content in the body. बॉडी में साल्ट के कंटेंट को, साल्ट के अमाउंट को, हमारी बॉडी में बहुत सारे साल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं जो किडनी के थ्रू ब्लड के थ्रू फ्लो कर रहे हैं. तो ब्लड में साल्ट का अमाउंट भी सही रहे, इसको भी किडनी मेंटेन करता है. अगर साल्ट अमाउंट ज़्यादा है तो वो थ्रू यूरिन थ्रो आउट हो जाता है. वाटर को भी ये बैलेंस करता रहता है. अगर फॉर एग्जाम्पल इन समर वी आर हैविंग कंसनट्रेटेड यूरिन, तो उस टाइम वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है. एंड इन द विंटर वी हैव द डाइल्यूट यूरिन. तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द किडनी. तो किडनी हैज़ फॉलोइंग फंक्शन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. Functional unit of the kidney is nephron. This is the structure of the nephron. As in your NCERT, the nephron is shown like this. It is actually like this. It is embedded in the blood vessels. Blood vessels से ये पूरा घिरा होता है, उसी के अंदर embedded होता है. तो this is the simplest structure as I drawn here to make you understand. So this is the nephron. This cup shaped structure is called Bowman capsule, and these are the corpuscles, blood vessels these are. So these two combines to form Bowman capsule. This one is the glomerulus. These two combines to form glomerulus. Okay, so this is the head part is called glomerulus, and this is the afferent arteriole and the efferent. It is bringing blood, oxygenated blood with waste material it is bringing. Okay, now this portion is called proximal convoluted tubule or PCT. And the next, this narrow portion, this U tube, that is called Henle's loop. And again the wide lumen part, okay, ये मोटी सी नली जो है, that is called distal convoluted tubule, DCT. And this is the collecting duct from which are collecting the urine from this nephron. तो ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी में बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होते हैं? एज यू कैन सी, ये आपको हायर स्टडीज में पढ़ने लाइक दिस, ये मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया आपको दिखाने के लिए. तो वो इस तरह से नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द किडनी. इस तरीके से वो पूरा ऐसे पूरा ये यहाँ तक ऐसे लोकेटेड होते हैं बोथ साइड ऑफ द किडनी. तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं और हर एक नेफ्रॉन जो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है. तो वो कैसे करता है, लेट्स सी. तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जो है वो अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम करता है. फर्स्ट स्टेप है इसका अल्ट्रा फिल्टरेशन. अल्ट्रा फिल्टरेशन में क्या करता है, अल्ट्रा फिल्टरेशन में ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्टरेशन में ये क्या करता है, जितने भी टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, हार्मोन, ग्लूकोज, आयंस, विटामिन, वाटर, ये सारा कुछ फिल्टर्ड आउट हो जाता है. यानी कि ये निकल आता है और बाउजमैन कैप्सूल में चला जाता है. ये जो ब्लड कार्पसेस है उनमें भी स्मॉल पोर्स हैं, और ये जो बाउजमैन कैप्सूल है इसमें भी पोर्स है. तो इस पोर्स से जो भी पोर्स से छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इस बाउजमैन कैप्सूल में आ जाते हैं. वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, वो आ जाते हैं, क्योंकि पोर्स जो है वो बड़े हैं उस मॉलिक्यूल से, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं. तो वो बहुत बारीकली से बहुत फाइनली ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दिस स्टेप कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टरेशन. नाउ आफ्टर अल्ट्रा फिल्टरेशन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. तो व्हाट हैपन इन द रीअब्जॉर्प्शन, एज वी नो दैट दिस
urea and uric acid, these are waste material for us, but amino acid, hormone, glucose, ions, vitamin, these are not waste product for us. So this should not be thrown with the urine. Okay, so this must be reabsorbed by the blood. ये जरूर से ब्लड में वापस चला जाना चाहिए. तो ये पार्ट क्या करता है कि इन सब जो यूज़फुल मटेरियल है, यूज़फुल मॉलिक्यूल है, इनको वापस से ब्लड के अंदर भेज देता है. इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन. सब कुछ नहीं रीअब्जॉर्ब करना, वॉट एवर नेसेसरी फॉर द बॉडी दैट शुड बी रीअब्जॉर्ब. दैट्स वाई इट इज done through selective reabsorption in the proximal convoluted tubule. The next one is this U shape. U shape is called Henle's loop. What does it do? It concentrated the urine. Concentrate हमारा यूरिन कैसे होगा? By taking out the water molecules from it. वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये जो ल्यूमेन आपका आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स जो खाली स्पेस, ये खाली नहीं है, इसके अंदर वाटर कंटेनिंग फ्लूइड है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत कम है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं और बॉडी में वाटर की ज़रूरत है, तो वाटर क्या होगा, इनमें से बाहर आ जाएगा इन द ब्लड में चला जाएगा वाटर, और हमारा यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड, यानी वाटर का अमाउंट उसमें कम हो जाएगा, तो उसको हम कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन कह रहे हैं. तो वाटर जो है वहाँ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इन हैनलीज लूप. और यही रीज़न है, क्योंकि ये यूरिन को कंसनट्रेटेड कर रहा है, तो ये रीज़न है कि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें ये हैनलीज लूप बहुत लंबा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब कर सके. और ये डेजर्ट एनिमल्स में ये लॉन्ग होता है. ठीक है, द नेक्स्ट पोर्शन इज दिस वन इज वाइड ल्यूमेन. जो ये जो चौड़ा सा आपको ल्यूमेन दिख रहा है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है. यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है. एक्चुअली दिस पोर्शन इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल. ये हार्मोनल कंट्रोल में होता है. ये यहाँ पे ADH हार्मोन यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये निकलते हैं जो प्रेजेंस ऑफ वाटर को चेक करते हैं. नेफ्रिक फिल्टर रेट, यानी जो नेफ्रॉन में जो अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड बना हुआ है, इसको हम नेफ्रिक फिल्टर रेट कह रहे हैं. तो नेफ्रिक फिल्टर रेट में ये चेक करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम है. अगर कम है तो वो और एब्जॉर्ब, वो कम है तो ओके. अगर हाँ, बॉडी में अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो ब्लड से वो वाटर मॉलिक्यूल नेफ्रिक फिल्टर रेट में आ जाएगा. और अगर वाटर मॉलिक्यूल बॉडी को रिक्वायर्ड है तो नेफ्रिक फिल्टर रेट से वो वाटर मॉलिक्यूल वापस ब्लड में चला जाएगा. तो इस तरह से वो चेक करते हैं. और इंसुलिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में देखता है कि ग्लूकोज लेवल अगर सही है तो ठीक है, और अगर ब्लड में ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज को फिर से नेफ्रिक फिल्टर रेट में डाल देता है. तो वो जो नेफ्रिक फिल्टर रेट अब जो बना उसको हम यूरिन कह रहे हैं. और ये यूरिन जो है वो कहाँ चला जाएगा, अब कलेक्टिंग डक्ट में, दिस कलेक्टिंग डक्ट में. तो अगर यूरिन में शुगर मॉलिक्यूल आ रहा है, इट मीन्स कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है और वो पर्सन डायबिटिक है. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन एंड विद दिस यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब यूरिन जो बनेगा वो फिर कहाँ चला जाएगा, फ्रॉम किडनी, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इट कम्स इन द यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इट comes out with the help of urethra. So this is about the excretory system in human. Thank you children. Please like and subscribe my channel if you like it, and for getting my updates. Thank you.